Hello everyone, welcome to this session of Techno Banker. So today we are going to discuss correspondent banking, Nostro, Vostro and Loro accounts. So this is Nandan and let's begin. First we will know what is correspondent banking and what is a correspondent bank. So a bank which provides certain services on behalf of another bank. A bank which provides certain banking services on behalf of another bank means if a bank which is not located in India is providing certain services on the behalf of an Indian bank, that bank is known as correspondent bank and the channel of entire banking is known as correspondent banking. So let's take an example. So here bank A which is in India and bank B which is in US. So if bank B is providing certain banking services to bank A, this bank B is known as correspondent banking. क्या बोलते हैं इसको? correspondent bank बोलते हैं. entire channel को हम लोग correspondent banking बोलते हैं. This bank A is known as respondent bank. इस bank A को respondent bank बोलते हैं, इसको correspondent bank बोलते हैं. Let's see what are the banking services this correspondent bank is offering to bank A. So they may offer so many of services, but the most services are वायर ट्रांसफर मीन्स दे आर हेल्पिंग इन वायर ट्रांसफर मीन्स स्विफ्ट के लिए हेल्प करते हैं, पेमेंट में हेल्प करते हैं. द सेकेंड दे आर गिविंग इज गैदरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. दे गैदर डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक ए या एज इंस्ट्रक्टेड बाय द रेस्पोंडेंट बैंक. थर्ड इज करेंसी एक्सचेंज. दे हेल्प इन द करेंसी एक्सचेंज मीन्स if a bank A is asking them to convert certain currencies into foreign currency, they are helping in this currency exchange also. And the last is conduct business transactions. They are doing so many business transactions as requested by the bank A. So these are the features. In turn, what bank A is giving to bank B? So bank A, which is known as respondent bank, is giving some fees to bank B, which is known as correspondent bank. So this is how a correspondent banking works. So now we will discuss Nostro account. What is Nostro account and what are the features and services availed between two banks while using a Nostro account. So first we will see the definition. So Nostro account is an account that a bank holds with foreign bank in the currency of the country where funds are held. Means it is a account that a bank holds with foreign bank. means एक बैंक एक फॉरेन बैंक के साथ अपनी अकाउंट को होल्ड करती है इन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द फंड्स आर हेल्ड. मीन्स व्हेन एन अकाउंट इज ओपनड विथ अ फॉरेन बैंक इन द फॉरेन करेंसी इट इज नॉस्ट्रो अकाउंट. उसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं. लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब हम नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो को डिस्कस करेंगे तो हमें एक होम कंट्री बनानी पड़ेगी. सो हेयर वी हैव फिक्स्ड होम कंट्री एज इंडिया. हमने इंडिया को होम कंट्री मीन्स हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें को देखेंगे कि इंडियन बैंक्स के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, इंडियन बैंक्स के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है. सो नॉस्ट्रो इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स आर्स. लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हमारा. हमारा अकाउंट फॉरेन बैंक के साथ फॉरेन करेंसी में उनके कंट्री में. सो दिस इज नॉस्ट्रो. इट इज फॉरेन बैंक अकाउंट इन फॉरेन करेंसी ओनली ओपन बाय बैंक. एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिस नॉस्ट्रो अकाउंट्स आर ओनली ओपन बाय द बैंक्स बिटवीन टू बैंक्स. सो ना कोई इंडिविजुअल ये अकाउंट ओपन कर सकता है और ना ही कोई नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये अकाउंट ओपन कर सकती है. व्हाई इट इज यूज? तो इट इज यूज फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल. इट इज यूज फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस एंड करेंसी एक्सचेंज. ये ओवरसीज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए या करेंसी एक्सचेंज करने के लिए ये अकाउंट को ओपन करते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. हियर बैंक ए विच इज एन इंडियन बैंक एंड हियर बैंक बी विच इज अ यूएस बैंक. सो इफ एन इंडियन बैंक इज हैविंग अ फॉरेन बैंक अकाउंट विथ बैंक बी तो क्या हुआ? दिस इज नॉस्ट्रो अकाउंट. सो इफ एन इंडियन बैंक मेंटेनिंग ए फॉरेन बैंक अकाउंट इन फॉरेन करेंसी विथ बैंक बी, this account is known as Nostro account. So friends, till now we have seen correspondent banking, correspondent bank, respondent bank, Nostro account, features of Nostro account. So now we will see Vostro account. So what is Vostro account? So Vostro is a Latin word which means yours. जैसे Nostro ours था, हमारा था, वैसे ही Vostro उनका, तुम्हारा है. yours तुम्हारा है. So
अ अकाउंट हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक, वॉस्ट्रो अकाउंट किसका होता है? फॉरेन बैंक की होती है। इट्स हेल्ड बाय द फॉरेन बैंक इन होम करेंसी ऑफ दैट बैंक। मीन्स whenever a foreign bank opens an account with an Indian bank in INR, home currency इंडिया की क्या है? INR, Indian rupees. So this account is known as Vostro account. So now see example, if a bank A in India and bank B in US, एक बैंक जो इंडिया में A है और बैंक B जो US की बैंक है, this bank B is having a account इन होम करेंसी। इंडिया के लिए होम करेंसी क्या होगी? INR होगी। सो बैंक बी इज मेंटेनिंग एन अकाउंट विथ बैंक ए इन INR एंड दिस अकाउंट विल नोन एज वॉस्ट्रो अकाउंट। क्यों होगा? क्योंकि बैंक बी अ फॉरेन बैंक जो यूएस की है, एक इंडियन बैंक होम बैंक के साथ INR में अकाउंट मेंटेन करती है। सो टिल वी हैव सीन वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो? व्हाई दिस बैंक अकाउंट्स आर so much operating in cross border transaction? So whenever a foreign bank wants to operate या wants to do a transaction in the home currency of a domestic bank, they used to hold account in Vostro. Similarly, when a home currency bank in India, a bank A wants to do some cross border transactions in foreign location, taking example as US, they have to open a Nostro account for their cross border transaction. So now the third type of account is Loro account. क्या होता है Loro account? तो is also a Latin word which means their, उनका। One bank holds an account with another bank, means one bank is holding an account on behalf of another bank, दूसरे बैंक के लिए अकाउंट होल्ड करती है। इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट। ये लोरो अकाउंट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो आर डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ फॉरेन बैंक और डोमेस्टिक बैंक, बट दिस लोरो अकाउंट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज अ टाइप ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट। लोरो अकाउंट को हम एक नॉस्ट्रो अकाउंट भी बोल सकते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, इट इज अ नॉस्ट्रो अकाउंट विच इज होल्डिंग बाय अ अनदर डोमेस्टिक बैंक ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड बैंक, सो इट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट। आइए एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ बैंक ए विच इज एन इंडियन बैंक इज मेंटेनिंग अ नॉस्ट्रो अकाउंट विथ बैंक बी विच इज इन यूएस, बैंक ए बैंक बी जो यूएस में उसके साथ नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रही है यूएसडी में, सो इट्स ए नॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ एन अनदर बैंक विच इज बैंक सी विच इज ऑल्सो एन इंडियन बैंक which wants to make a transaction by using the nostro account of bank B. So ये बैंक C बैंक A को रिक्वेस्ट करेगी कि आप मेरे बिहाफ पे बैंक B के साथ ट्रांजेक्शन करो। So this nostro account of A will now be a loro account for बैंक C. ऐसा क्यों होता है? Why this is happening? ऐसा क्यों बैंकिंग सिस्टम में? बैंक सी इज अ स्मॉल बैंक, पहला। दूसरा हो सकता है दे डोंट हैव देयर ओन नॉस्ट्रो अकाउंट। बैंक सी एक छोटी सी बैंक हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स या इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, एंड बैंक सी का अपना नॉस्ट्रो अकाउंट बैंक बी के साथ नहीं है। सो लोरो बहुत ही रेयर केस में आता है, बट दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन बैंकिंग सिस्टम. So today we have covered correspondent banking, nostro, vostro, loro bank, loro account, loro banking system. If you really like this video, please subscribe. If you are new on this channel, please share to the larger audience. If you really have any doubt, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन. कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो रिलेटेड टॉपिक से आप कमेंट सेक्शन में लिखें. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.